Okay, so in the previous lecture, I told about gens. Okay, that means generative adversarial networks, which are combination of. Okay, it's a combination of generator and discriminator. Right now, we are seeing a basic model, that means a form of a gen, in which we are having these two components only. So what you have seen in the previous lecture, that you give a random data to generator, and this generator will produce some output that is given to the discriminator, and here, along with the output of generator, here I am giving actual data as an input. So the task of the generator is to classify real and fake, because generator produce fake data, discriminator discriminate between real and fake. Okay, so here I going to give real data, here you are going to get the fake data. This is a random input, which we are calling as Gaussian distribution, okay, or normal distribution. So from here we understood that generator expects continuous data. Okay, it expects continuous data as an input, as an input. Okay, that is your normal, yeah, Gaussian distribution, and this is a Jan model. Training of both generator and discriminator is being done simultaneously, and whatever their task is, I have told. Ultimately, for many iterations, I want to make generator strong, because we want this generator to produce images, that is the fake images that looks like real. That is why we are training this model, because next time we are going to use the generator to produce the fake images or AI images. All right. So this Jan architecture is moreover used in image generation. In, okay, image generation. Okay. Why? Because as I already told that generator is expecting continuous input, and if you want to generate a text is basically discrete in nature. Okay, we have to technically understand that why this model is generating images.
Okay, we can use Jan for text also, but it is it's a hectic process because you are seeing that generator is taking continuous. It's moreover this Jan model is built for image generation. Okay, the kind of setup which we have built is for image. All right, so that's why here I'm targeting image generation only by Jan. Okay, and for images yesterday we did discussed that okay, you want to represent image in form of a matrix. Okay, and this we can do okay by like because images are of different types. Okay, that means in terms of color I am saying okay we can have grayscale, we can have color images. All right, so there are different types of images, and according to the pixel intensities now we can represent them in a matrix format. Okay, that means the values we can put those into the matrix. For example, if I do talk about the grayscale, so 0 stands for the white and 1 stands for the black. So grayscale, the range of the values, the range of the values will be between 0 to 1. I'm talking about the grayscale. Okay, so 0 to 1, and here for for color, if I say color, so it is like 255. Okay, if I just to talk about this grayscale thing, 1 means it's 255, 0 means 0. Okay, and rest whatever be the colors are, they will be between these numbers. For example, 127, 128, 254, whatever be. Okay, they will be like between these. Okay, so yes, we have to create metrics, image metrics based upon the color intensity. Okay, like this. And I told you about convolution. Okay, so convolution is an operation. We do have a kernel matrix which operates over the image matrix, and you get a result which is convolved because of this operation. Okay, so how we are approaching a problem, that is important. The first thing is your data representation. Okay, representation. You represented image in form of a matrix, and there you put pixel intensities, the values, the kind of a image, color of an image na, like तो grayscale है तो for that now you're putting the value. Color होती तो कुछ और put up करते. Okay, तो here you are putting the values. और आपका ये जो मैट्रिक्स बनी है दैट इज अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन, एंड यस्टरडे आई टोल्ड कि हम इमेज प्रोसेसिंग करके उस रेजोल्यूशन को फिक्स करते हैं. ओके, जस्ट लाइक आप ऐसा कर सकते हो 224 क्रॉस 224 ऐसा कर सकते हो. तो ये जो मैट्रिक्स बनी है ये 224 की बन जाएगी. और ये जो कर्नल होता है, ठीक है, आई एम गोइंग टू शो यू टुडे. देखिए, ये जो होगा, ये मैट्रिक्स होगी 3 क्रॉस 3 की, या होगी 5 क्रॉस 5 की, या होगी 7 क्रॉस 7 की, या होगी 9 क्रॉस 9 की. Just like now, we do take the kernel matrix or a filter matrix. Okay, usually in odd numbers. Okay, and it's gonna multiply. कैसे होगी? I am going to show you. Okay, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं ऐसे बना रखे हैं कि आप जो है ऑड वाली ले लें, ठीक, एंड लेकर आप जो है what you can
perform the convolution operation. ठीक है, over the image. Yes sir. Sir, I have one doubt here. Hmm. Grayscale, it is whenever we have grayscale, there will be one image will be there. Hmm. If you say color, then there will be three composite So RGB. grayscale na, grayscale sir, it doesn't mean only black and white. Sir, actually na, there is some confusion related to it. Okay, so grayscale like black and white ना, that's what, but उसके intermediate colors भी होंगे सर. ठीक है, इस बीच में 0 से लेकर 255 का होता है सर. Correct, sir. 0 to 255. So whatever be the 255. intermediate values are also been there ना, that are Yes. also present in the grayscale. वो भी रहेंगी. Sir, my question is, sir, Hmm. like you have R component, G component, Hmm. B component Hmm. also, हाँ. and there are the kernels. हाँ. So you will convol and you will add them together, or how is the process? Sir, That is only the thing is if you are having RGB also ना, so RGB ना, like उसमें ऐसा होता है, यदि कहा बिल्कुल आपने कहा R कंपोनेंट, ग्रीन कंपोनेंट, RGB, तीन कंपोनेंट होते हैं. ऑलराइट, सो जस्ट लाइक दिस थिंग ओनली, जैसे ओनली रेड कंपोनेंट है, तो इनको ज़ीरो करो आप, and just take this value of r, whatever be the numerical value of r that you take. ग्रीन कंपोनेंट है तो इसको ज़ीरो करें, जस्ट टेक दिस वैल्यू ऑफ द ग्रीन. और यदि ब्लू कंपोनेंट है तो इनको ज़ीरो करिए आप और ये करिए. एंड सर ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन होगा. ठीक है, क्योंकि यदि आर इमेज है तो सर कॉम्बिनेशन तो होगा. दैट ऑल्सो आई विल शो यू अहेड. Okay, I do have a notes. I think I have also shared you notes, sir, previously. So we are going to perform the combination of these components also. ये करते हैं क्योंकि सर आरजीबी से ही मल्टीपल कलर्स बन जाएंगे और ये प्राइमरी है. ओके, दीज आर द प्राइमरी कलर्स. ओके, प्राइमरी कलर्स, और हम ये जानते हैं कि थ्री कलर्स को मिलाकर हम 2 की पावर 3 8 कलर्स बना सकते हैं. देन 2 की पावर 8 को मिलाकर जो है वी कैन हैव हाउ मच, that is 256, isn't it? And 2 की पावर 256 करके we can make many more colors. तो ये कर सकते हैं. तो सर ये प्राइमरी है. ऑल राइट, तो दैट्स वॉट वी कैन डू. ये कर सकते हैं. फाइन. एंड हाउ वी आर गोइंग टू combine them, that I'm going to tell you in the convolution operations. All right, so right now अभी ऐसा है, this task perform होता है इमेज के ऊपर. ओके, एंड ये आपको रिजल्टेंट मिलता है. अभी स्टिल you haven't seen that how this task is performed, ये भी आपको देखना है. So let me share my entire screen and I show you how this is performed. So we'll talk about the convolution now. Okay, so we are trying to understand the convolution neural network. Okay, fine. अब अच्छा नाम है convolution neural network, so it's like convolution plus neural network. Neural network you studied. Okay, convolution I told. Okay, that this is a layer which is having kernels or the filters. So this plus deep learning is equal to CNN, convolution neural network. Okay, simple formula. Fine. So if you want to deal with the images, you have to use convolution. Fine. So ये input है आपकी image. Here you applied convolution. मैंने आपको पहले भी बताया था there are many filters. ये सब filters हैं, लाइन से लगे हुए हैं. ओके, फिल्टर्स हैं या कर्नल है, ये मैट्रिक्स है. ऑल राइट, दे विल बी ऑपरेटिंग ओवर द इनपुट. देन ए मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, वो तो पूरा ही मैट्रिक्स होगा. वो तो ये भी पूलिंग, पूलिंग एक लेयर होती है. अगेन आई विल लेट यू नो व्हाट दिस पूलिंग लेयर इज. अगेन दिस इज अ मैट्रिक्स. सो वी आर हैविंग ऑल टुगेदर द मैट्रिक्स ऑपरेशंस. सो टिल हियर दिस इज कन्वोल्यूशन. यहाँ तक ये पूरा जो काम होगा ये कन्वोल्यूशन होगा. ओके, और उसके बाद न्यूरल नेटवर्क काम आएगा. देन द न्यूरल नेटवर्क विल बी देयर. ओके, यहाँ पर होगा न्यूरल नेटवर्क. Fine. So this is a process of feature extraction. I already told you that convolution is used for feature extraction. Okay, because images do have the features.
It is made up of the features only. So what we are doing is we are extracting the features from the images, and those features we are going to give into the neurons for the training. Okay, so it's overall called as a convolution neural network. It is also fully connected. That's we called as a fully connected network. Okay, fine. So here you can see this is your image matrix. Now stay attentive. Okay, listen properly. This is your image matrix. For example, these are the entries A, B, C, D. Okay, तो ये रो है, फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, this is third row, this is fourth row, and these are the columns. Okay, fine. And this is your kernel or filter matrix. Okay, I already told you that the kind of a kernel you have to select is the operation, okay, you are expecting over an image. Yesterday I told you many operations. For example, you want to increase the sharpness, brightness, dullness, darkness, whatever you want to do now, such kind of kernel can be selected. Okay, there are different kind of kernels. So here right now this is just like a hypothetical thing. What you are seeing, the kernel is having four values. It is 2 cross 2 matrix. So image is having 4 cross 4, kernel is having 2 cross 2. So how do it operates? You know what it is done. This 2 cross 2 will multiply with the 2 cross 2 here. Okay, so matrix multiplication you very well know. Okay, that means A W plus B. Okay, A W plus कैसे होता है, this into this, ऐसा होता है. फाइन. देन मतलब एक यहाँ पर तो जो है ये देखिए ए डब्ल्यू प्लस बी एक्स. ठीक है. सो ए इंटू डब्ल्यू प्लस बी इंटू. ओके, आई थिंक ये इसने कुछ गलत तो नहीं करा. ये हाउ इट्स गोइंग टू डू, हम क्या ये ले रहे हैं. ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये एंड ये. ठीक है, अब भले ऐसा कर लो. जस्ट टेक दिस कॉलम एंड दिस रो. ओके, तो ए डब्ल्यू प्लस ई वाई. Okay, AW plus E into Y plus B into X plus F into Z, ऐसा करके आ रहा है. ठीक है. तो इट डू ऑपरेट विथ दिस थिंग. देन वो क्या करेगा, मूव करेगा, ये वाला मैट्रिक्स मूव करेगा. तो नेक्स्ट ऑपरेशन इसके साथ होगा मल्टीप्लीकेशन. देन फिर मूव करेगा वो, फिर इसके साथ होगा. ओके, ये स्ट्राइड कर रहा है एक्चुअली. दिस इज कॉल्ड अ स्ट्राइडिंग. ओके, तो आपके ऊपर है. आपने अभी वन वन से स्ट्राइडिंग करने का बोला उसको कि वन से करो आप स्ट्राइड, तो इट इज मूविंग. ठीक है, वो पहले इससे करेगा. अभी मैं आपको GIF इमेज ही बताऊंगा तो थिंग्स विल गेट मोर क्लियर. दिस इज हाउ इट डू परफॉर्म द मल्टीप्लीकेशन. सो व्हेन दिस मल्टीप्लीकेशन इज डन परफॉर्म, तो फिर वो नीचे आ जाएगा, फिर वो इससे करेगा. ठीक है, फिर इससे करेगा मल्टीप्लीकेशन, देन फिर इससे करेगा मल्टीप्लीकेशन, देन फिर नीचे आएगा, इससे करेगा मल्टीप्लिकेशन, देन इससे करेगा मल्टीप्लिकेशन, देन इससे करेगा मल्टीप्लिकेशन. सो हियर इज द रिजल्ट विच यू आर गेटिंग. ये आपको 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिल गई. दिस इज द एक्टिवेशन मैप और द कन्वोल्ड मैट्रिक्स और द रिजल्ट ये आपको मिला. ये कन्वोल्यूशन में ऐसे ही होता है. ठीक है, ये देखिए अब आपको और क्लियर हो जाएगा. ओके, हाँ, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर. आपके पास ये क्या है, ये आपके पास कर्नल है या फिल्टर है. 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है, और ये आपके पास 5 क्रॉस 5 की इमेज की मैट्रिक्स है. सो ये 3 क्रॉस 3 वाली, ये देखिए इससे मल्टीप्लाई हो रही है. ओके, दिस 3 क्रॉस 3 इज मल्टीप्लाइंग हियर. ओके, तो एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन होता है. सो यहाँ जो वैल्यू थी दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय हियर, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय हियर, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय हियर, ऐसी ही चलेगी.
ऊपर वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को उस तरीके से ना रिप्रेजेंट करें। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप, ठीक है, तो जैसे हमने कहा a इंटू डब्ल्यू, b इंटू एक्स, ऐसे सीधे सीधे चलो। ठीक है, फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देयर इज अ रूल, however we are right now not focusing upon such, ओके, दैट मीन्स बिल्कुल स्ट्रिक्टली कोई फॉलो नहीं कर रहे हम। बेटर यही है कि आप एलिमेंट बाय एलिमेंट, पोजीशन बाय पोजीशन मल्टीप्लाई करें, वही होगा। ठीक है, सो दिस बाय दिस, देन दिस बाय दिस, एंड देन दिस इनटू दिस। ठीक है, प्लस, ठीक है, देन अगेन ऐसे ही पोजीशन वाइज यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड ऐड ऑल ऑफ देम। ऑलराइट, सो जो रिजल्ट आएगा फाइनली वो आ रहा है यहाँ पर 4। यू कैन सी 1 इंटू 1 इज 1, ये 1 इंटू 1 इज 1, तो 2, 1 into 1 is 1, 3, and 1 into 1 is 4. Rest सारे zero हैं. So the answer is 4 here. Similarly, we'll get the rest of the results. Let me run it now. देखिए, वो fill up करते चले जाएगा. And वो stride कर रहा है. ठीक है, it's quite easy. Okay, you can see that. तो क्या हो रहा है, वो मूव करती चली जा रही है मैट्रिक्स। तो ये इससे डील करेगी, फिर वो इससे डील करेगी, देन इट कम डाउन। ओके, देन वो इससे डील करेगी, ओके, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से इट वर्क्स। ऑलराइट, ये रहा, एंड देन फिर ये रहा, एक नीचे आया, फिर एक और नीचे आ गया, और ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ ऑपरेशन। ओके, फाइन, सो ये आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिली। ये करता है कन्वोल्यूशन। कर्नल साइज जो है, दैट मीन्स द मैट्रिक्स, वी डू प्रिफर ऑड वैल्यूज। ठीक है, जैसे अभी कुछ देर पहले ही आई डिड टोल्ड 3x3, 5x5, 7x, रेयरली करते हैं ये हायर वैल्यूज तो रेयर करते हैं। ओके, फाइन, and it is recommended to use the smaller window sizes and odd ones को recommend किया जाता है। ठीक है, स्ट्राइडिंग का मतलब यह है, जैसे मैंने बोला था ना आपसे, टिपिकली इट इज सेट टू 1, दैट मीन्स वो मूविंग। ठीक है, वो विंडो है। ठीक है, स्ट्राइडिंग एक विंडो है, मूवमेंट है वो, एवरी स्टेप। तो अभी आप देख रहे थे ना, 1 1 से स्ट्राइड कर रही है ये देखिए, 1 पोजीशन है, वो एक 1 1 से मूव कर रही है। अब मतलब एक तो अपनी रो वाइस एंड कॉलम वाइस। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज मूविंग। स्ट्राइडिंग में अलग अलग नहीं करते, वी डोंट टेक की हाउ मच रो वाइस एंड हाउ मच कॉलम वाइस, इट्स बाय डिफॉल्ट इट इज 1। तो इफ इट इज मूविंग 1 by 1, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। आप चाहो तो स्ट्राइडिंग 2 भी कर सकते हो। तो वो क्या करेगी, वो टू टू स्विच कर जाएगी। ओके, इन रो वाइस ऑल्सो, इन कॉलम वाइस ऑल्सो, इट विल स्विच, it will take the 2 jumps. All right, so here by default it is 1. Okay, so it can be increased. Okay, if you want to reduce the input size, then it can be increased. ठीक है, फिर होती है पैडिंग। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सी, पैडिंग इज अ टेक्निक ऑफ एडिंग जीरोस टू द बॉर्डर ऑफ एन इमेज। Okay, so by applying padding, the kernel can fully filter every position of an input image, ensuring that even the edges are properly processed. एक issue होता है, वो इमेज की जो एजेस होती है ना, अ, हम ये चाहते हैं कि ये जो ऑपरेशन है, दिस कर्नल ऑपरेशन, टू बी फुल्ली अप्लाइड ओवर द इमेजेस, प्रॉपरली हो सके। बट क्या होता है कि जो बॉर्डर एरियाज होते हैं वो छूट जाते हैं। ओके, सो पैडिंग कर दें, यदि हम उनको कंप्लीट कर दें, तो वी कैन इंश्योर दैट इवन एजेस आर प्रॉपरली प्रोसेस्ड। Okay, that will also come into this matrix multiplication. Okay, then comes the number of filters या depth बोले हम, यानी कि if you are adding a convolution layer, okay, तो how many kernels you have to take, that is the question. मतलब ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो, ये how many such matrix we have to take to perform the convolution. ठीक है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है। ये जो ये जो मैट्रिक्स एक जो स्ट्रेड कर रही है ना, उसकी साइज बता रहा हूँ, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो कितनी साइज की, मतलब कितने लें।
हाउ मेनी कर्नल्स वी हैव टू टेक, साइज तो हो गया, खैर यहाँ पर बता दिया, 3 क्रॉस 3। हाउ मेनी सच नंबर्स ऑफ कर्नल्स ऑफ द फिल्टर्स वी हैव टू टेक। तो भाई ऐसा है कि द नंबर ऑफ फिल्टर्स इन अ कन्वोल्यूशन लेयर डिटरमाइंस द नंबर ऑफ पैटर्न्स और द फीचर्स दैट अ लेयर विल सीक टू आइडेंटिफाई। ठीक है, तो कई बातें हैं इसमें, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहा मैं, अभी आप देख भी रहे हैं कि आई जस्ट making you aware with the concepts related to the images and the convolution. Okay, so number of filters, how much we can take. Let us suppose if I say 64, so there will be different kernel metrics, अलग अलग kernel metrics होगी, different kernel metrics. Okay, and that's what they said कि what features you are looking forward to extract, that is the question. So correspondingly you have to take the number of kernels. Okay, so if I take like model dot add, and if I'm going to add a convolution layer, convolution 2D. Okay, and if I put like a number 64. Okay, if I do put a number 64, and if I write kernel size equal to 3 comma 3, this is how I'm going to add a convolution layer. Okay, fine. So here 64 represents number of kernels, and these kernels, every matrix is different. कोई शार्पनेस बढ़ा रही होगी, कोई ब्राइटनेस बढ़ा रही होगी, कोई डार्कनेस कर रही होगी, कोई कुछ कर रही होगी, कुछ वो तो डिपेंड करता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कन्वोल्यूशन 2D, ठीक है, इट्स अ 2D मैट्रिक्स होगी है, एंड कर्नल का साइज है 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, तो एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होंगे, मैट्रिक्स होंगी 3 क्रॉस 3 की। इट विल बी लाइक दिस 1 0 1 0 - 1 0 एंड लाइक 1 0 1। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये जो मैट्रिक्स है, ये कर्नल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि आई व्हाट आई नीड टू डू, what kind of transformation i need I need to do over image। क्या करना है मुझे इमेज के साथ, ये कर्नल यही बता रहा होगा। ओके, तो 64 डिफरेंट कर्नल्स होते हैं। अब बात यह है कि जब आप ऐड करते हो ना लेयर, यू डोंट गिव फ्रॉम योर साइड, मतलब कि ये रिफ्लेक्शन वाला है नहीं, आप तो सिर्फ ऐसे ही ऐड करते हो लाइक दिस। यू डू राइट अ कोड मॉडल डॉट एड कन्वोल्यूशन 2D 64 कर्नल साइज 3 - 3। आप अब अंदर वो जो 64 हैं उनको आप डिफाइन नहीं कर रहे, यू आर नॉट डिफाइनिंग दम कि देखो बेटा ये पहली वाली रिफ्लेक्शन की है, दूसरी वाली जो है शेयर की है, तीसरी वाली ब्राइटनेस की है, फोर्थ वन इज फॉर डार्कनेस, फिफ्थ वन इज फॉर लाइटनेस, ये कुछ ये आप नहीं कर रहे हो, है ना। आपने तो सीधे बोल दिया कि 64 कर्नल ऐड कर देना, you do add 64 kernels। Okay, the it will automatically add different filters or different kernels in your model। Okay, it's like same only na, when you do in the deep learning you do perform this thing model dot add dense, and you write 10, so it's gonna add 10 neurons to your architecture। बट व्हाट इज द वेट, व्हाट इज द बायस, यू डोंट गिव, वो ऑटो ले लेगा, वो ऑटोमेटिकली कुछ भी असाइन कर देगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी मान लो अभी मैंने दिया ही नहीं है, व्हेन आई से 64 कर्नल्स मुझे ऐड करना है कन्वोल्यूशन में, वो ले लेगा 64 अलग अलग मैट्रिक्स बना लेगा वो अकॉर्डिंग टू। अब आप इतनी ये भी ज़्यादा फीचर्स अपन ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि आफ्टर द कन्वोल्यूशन ना साइज रिड्यूस होता है इमेज का, ध्यान देना। ओके, फ्रॉम हियर ओनली ना यू गेट एन आइडिया। देखिए इनिशियली इमेज जो थी वो 5 क्रॉस 5 की थी, आफ्टर कन्वोल्यूशन इट गेट कन्वर्टेड इनटू 3 क्रॉस 3, सो साइज गेट रिड्यूस्ड after the convolution। So this is what you have to remember, that how many convolution you have to add, you are going to add further more convolution, further more size will be reduced, we don't want that image should be diminished completely over, this is what we are not expecting। Okay, so just by applying the filters we are extracting the features from the images। Okay,
and we are going to use those features for our training process ahead. All right. So these are some points related to the convolution, and this is a formula actually, that what will be the output matrix. Okay, what will be the output? So the height of the output matrix will be 1 plus height of the input plus 2 into padding minus height of the kernel. Okay, and width output is equal to 1 plus width input 2 into padding minus k weight upon s. S means striding. Okay, so it's a very simple formula. Okay, so what it means? Okay, so let me tell you what it means. Just right now, you have seen that this is 5 cross 5 matrix. This is 3 cross 3 kernel. So what is the resultant matrix? So you can apply the formula. And the formula says that here, the formula says that 1 plus, okay, so do this thing, 1 plus height of the input. The input matrix height is 5. We are not doing any padding here. For example, we are not doing any padding. So minus height of the kernel, that is 3. ये कर्नल की हाइट 3 है इनपुट में, ठीक है, ये कर्नल की हाइट 3 है, ओके, और ये इमेज की हाइट 5 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्ट्राइडिंग, लेट अस सपोज अपन 1 से ही स्ट्राइड कर रहे हैं, ओके, तो ये आपका हाइट आउटपुट आएगी, एंड विड्थ आउटपुट आएगी अगेन 1 प्लस, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द इनपुट 5, लेट अस सपोज कोई पैडिंग नहीं करा 0, माइनस ये कितना है 3, दैट मीन्स कर्नल कर्नल की वेट विड्थ कितनी है 3 डिवाइडेड बाय स्ट्राइडिंग, वो भी अभी 1 ही है, ओके, सो हियर यू कैन सी 1 plus 5 minus 3 is 2, 2 by 1, so 1 plus 2 is 3, here also same, 1 plus 2 by 1, here also 3, so 3 3 यानी हाइट और विड्थ 3 3 आ रही है, and ultimately the output matrix will be 3 cross 3, and obviously you got the same thing here. आपको यही तो मिल रही थी, ये देखो, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स से तो बनते हुए नजर आ रही है, ये है ना 3 क्रॉस 3, ऑलराइट, तो भाई ऐसे कन्वोल्यूशन काम करता है, एंड अगेन द सेम काइंड ऑफ ऑपरेशन विच यू हैव सीन अबाउट. सो दिस इज योर फिल्टर, देखो मैंने बोला था ना 1 1 0 0 -1, तो ये फिल्टर है, ये कर्नल है, ये मैट्रिक्स है, ये आपकी इनपुट है, इमेज की मैट्रिक्स है, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है. अब मुझे नहीं लगता आपको कन्वोल्यूशन में इशू आना चाहिए, इतना बेसिक्स तो मैंने बता दिया आपको. ऑलराइट, तो ये चीज़ें हैं. अब जो सर भी पूछ रहे थे, सर आरजीबी का एक क्वेश्चन आया मेरे पास, उसके बारे में बता देता हूँ. सी, व्हेन द इनपुट इमेज हैज मोर देन वन चैनल, ओके, एग्जांपल आरजीबी. सो आरजीबी जो होता है ना, कलर चैनल्स होते हैं, दीज आर द कलर चैनल्स. इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब आप आर्किटेक्चर बनाते हो ना, तो वहां पर 3 चीजें होती हैं. एक होती है डेप्थ, एक होती है चैनल्स, ठीक है, एक होती है डेप्थ होते हैं, चैनल्स होती हैं, विड्थ होती है, ओके, विड्थ होती है, जब हम कहें नंबर ऑफ फिल्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है सब. ओके, सी, आई एम नॉट टेकिंग योर इमेज प्रोसेसिंग स्टफ, ऑलराइट, बट आई एम जस्ट हाईलाइटिंग यू सम पॉइंट्स. Okay, so when the input has more than one channel, that means this is 3 channel. RGB is, then it 3 colors है ना, so 3 channel है. Okay, so the filter should have a matching number of channels. Filter भी matching number of channels का होना चाहिए, यानी कि to calculate one output cell, perform convolution on each matching channel. ठीक है, हर एक चैनल पर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा. यानी कि देखिए, 3 चैनल है, तो ये आपकी इमेज की मैट्रिक्स है. दिस इज द इनपुट चैनल 1, ये रेड, ठीक है, रेड, ऑलराइट, ये रेड चैनल. फिर ये है आपका ग्रीन चैनल, और ये है आपका ब्लू चैनल.
तो इनपुट को तीनों चैनल से मल्टीप्लाई करा हमने। ओके, वी डिड मल्टीप्लाइड इनपुट विद ऑल द थ्री चैनल्स। आप देख रहे हैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और यहाँ पर ये जीरो क्यों लगाया है? जीरो ये पैडिंग है। दिस इज व्हाट द पैडिंग इज। मैं बाउंड्री कवर कर रहा हूँ। दिस इज द पैडिंग, ताकि मेरी इमेज प्रॉपरली प्रोसेस हो जाए और कॉर्नर एरियाज या एजेस छूटे ना प्रोसेसिंग में। Okay, we don't want to leave the corners or the edges, so that is why we do perform the padding. So you know what happened? Uh, all will be covered. देखिए पूरा कवर हो जाएगा ये। That is why we did the padding. और padding भी types की होती है, वो आगे बताऊंगा, या जो भी है ज़रूरत पड़ती तो ठीक है। ठीक है, तो ये कलर चैनल्स हैं। इंडिविजुअली कर्नल जो है इनसे मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन सबको ऐड कर 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 ये फाइनल आउटपुट मैट्रिक्स के अंदर पुटअप किया जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो वी आर हैविंग एन इनपुट, वी आर हैविंग थ्री कलर चैनल, so we are multiplying the image with each and every channel individually. Whatever be the results are coming, I am adding and I am putting on their respective locations. ठीक है, उनको उनकी लोकेशंस पर पुटअप कर रहा हूँ। ठीक है, ये चलते जाएगा। आरजीबी में यही होता है। तो कलर कलर चैनल्स होते हैं यहाँ पे। ओके, सो टू परफॉर्म दिस थिंग, आप ये कन्वोल्यूशन ऐसे प्रोसेस को फॉलो अप कर रहे हैं। आफ्टर ईच कन्वोल्यूशन ऑपरेशन और CNN अप्लाइज रेलू, चलो वो बात की बात है, ट्रांसफॉर्मेशन टू द फीचर मैप रिड्यूसिंग नॉन लिनियरिटी इन द डेटा, वो देखेंगे, वो बाद में बताओ। अभी तो आप सिर्फ ऑपरेशन देखो कन्वोल्यूशन वाला। ओके फाइन। तो क्या होता है इमेज प्रोसेसिंग में, प्री प्रोसेसिंग में, यू माइट बी गिवन कि ये जो हमारी इमेज है वो कलर इमेज है। कलर इमेज को अपन जैसे करते हैं RGB टू BGR, BGR मतलब कन्वर्जन होता है प्री प्रोसेसिंग के अंदर। ऑलराइट, ये कन्वर्जन ऐसे ही होते हैं। फॉर दैट वी यूज CV2, कंप्यूटर विजन एक लाइब्रेरी होती है, ठीक है, इसका यूज करते हैं। ओके फाइन, तो ऐसे कन्वर्जन होते हैं वहां पे। ग्रे भी होता है, RGB टू ग्रे, ग्रे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, मतलब रेड ग्रीन ब्लू कलर चैनल जो है आपकी इमेज, उसको ग्रे कलर में कन्वर्ट कर दी। दैट्स व्हाट वी कैन डू। सर सर इसमें हम हमारे पास एक इमेज की तीन वो हैं, रेड चैनल्स ग्रीन हैं। और ब्लू, हाँ चैनल्स हैं। तो हम अब इसमें जो हो रहा है कि तीनों का मिलके एक ही बन रहा है, तो हम कलर इन्फॉर्मेशन लूज कर रहे हैं क्या? ये जो फाइनल जो आउटपुट आ रहा है जैसे -25, तो इसमें तो रेड ग्रीन और ब्लू की सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब इन सबका मिला के एक वेक्टर बन गया है। हाँ हाँ, एक मैट्रिक्स बनी है आपकी। यस, दिस इज वन ऑफ एक द एक मैट्रिक्स। मतलब डेटा पॉइंट आ गया। हाँ हाँ, एक मैट्रिक्स बन गई है आपकी। ऑलराइट, सो लूज नहीं कर रहे सर। ये जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है ना सर, इसकी इंफॉर्मेशन इसमें है, लूज कुछ नहीं हुआ है सर। वी आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, वी आर इनफैक्ट एडिंग RGB, we are in fact adding red green blue values to make a overall value, so we are not losing actually sir। ठीक है, हम तो इनफैक्ट और ऐड कर रहे हैं, इनकी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं कि रेड चैनल की इंफॉर्मेशन है, ये ग्रीन की है, ये ब्लू की है, कन्वर्ट, ऐड ऑल ऑफ देम एंड जस्ट डिफाइन दिस, सो देयर इज नथिंग लॉस। अच्छा, Okay, so that's a good question he asked, but it's clear। मतलब मैं आपको बता दूं, उसका इंटरप्रिटेशन यही है कि आपने तो उल्टा ऐड करा इंफॉर्मेशन को, तो लूज कुछ नहीं करा। ये तो इंडिविजुअल थी, आपने ऐड करके उसको ओवरऑल मतलब जो है एक वैल्यू दे दी। इसमें थ्री कलर चैनल की वैल्यू है। अच्छा, ओके। ओके, और ये ये एडिटिव और होगा। ये कॉन्वोल्यूशन मैट्रिक्स के साथ इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर आउटपुट हाँ, आएगा। ये चैनल जो है ये कन्वोल्यूशन ही है सर, ये कन्वोल्यूशन मैट्रिक्स ही है सर, ये कर्नल ही है। अच्छा अच्छा। ये रेड कलर है,
रेड कर्नल ये चैनल है, ये रेड चैनल है, ये आपका ग्रीन चैनल है, ये ब्लू चैनल है, ये कन्वोल्यूशन मैट्रिक्स ही है दैट इज वर्किंग ओवर द इमेज. ओके ओके Okay, so we are. मतलब अगर एक इमेज से सॉरी एक इमेज के अंदर 3 चैनल्स हैं और जो हम्म. हमारे रेड ग्रीन है वो हम्म. कॉन्वोल्यूशन मैट्रिक्स में गए, हाँ तो हाँ कॉन्वोल्यूशन मैट्रिक्स से हमको तीन मैट्रिक्स जनरेट नहीं होगी, सिर्फ एक ही जनरेट हाँ, होगी फॉर ऑब्वियसली वन सर, एक इमेज। ही, हाँ एक ही होगी जिसमें तीनों की ओके इंफॉर्मेशन होगी. ओके ओके। ऑल Sir, राइट. there is some distortion is coming, sir, हाँ from your side, I think. हाँ, it's no, he muted sir, it's all right. So yeah, there is some issue. Fine, so this is how the convolution works. All right, so ये color channel का था. All right, or then we are having pooling layers after convolution na, we do apply pooling is actually downsampling. Okay, this is dimensionality reduction. That's a downsampling technique. So whatever you got from the convolution na, you have to again multiply it to a pooling matrix that will downsample. Downsample, that means that will further reduce dimension और कम कर देगा वो. That is downsampling. Pooling होती है. ठीक है. So here we are looking forward to decrease the number of parameters. Actually, I want to extract those features which are relevant for me. मैं ये करना चाह रहा हूँ. मैं पूरी इमेज में, ओके, इन इमेज, देखिए क्या है समझना पड़ेगा. इन एन इमेज, ओके, लेट मी मेक it here. Okay, so in an image you are having a person. All right, and this is also a person, for example. The rest of the areas are not of your concern, but ultimately this complete image has been converted into matrix and you are performing the operation. Okay, so I want to remove ये relevant features का मेरे को कोई काम नहीं है. Whatever be the rest of the area na, I'm to focus upon the features of these two. Okay, if I need to classify that, okay, there are person or there is any other object present in an image, so I need to focus upon those areas only. Okay, तो बाकी को मुझे क्या करना है, हटाना है, रिमूव करना है. दैट्स व्हाई ना वी आर परफॉर्मिंग पूलिंग is just like in machine learning, not dimensionality reduction. In machine learning also we are having dimensionality reduction technique. Okay, so similarly here we are dropping some of the features from the images. It's a dimensionality reduction. All right, just to have access of the relevant information only. तो हम क्या करेंगे, तभी मैंने कल भी कहा था, इट्स ए कंबाइंड है ये. कन्वोल्यूशन पूलिंग, कन्वोल्यूशन पूलिंग, यानी आई विल एक्सट्रैक्ट द फीचर, आई विल गिव टू द पूलिंग फॉर डायमेंशनलिटी रिडक्शन. अगेन whatever be left, again I will extract the feature, again I will give to the pooling. ठीक है, तो ये करता चला जाएगा वो, ये एक कॉम्बिनेशन में चलेगा पूरा. एंड देन फिर जो है द लास्ट वट एवर बी लेफ्ट विद मी, उसको मैं करूंगा फ्लैटन. आई टोल्ड यस्टरडे ऑल्सो. ओके, उसको मैं फ्लैट करूंगा, यानी मैं उसको 1D में कन्वर्ट कर दूंगा. वो मेरा इनपुट होगा. ठीक है, दैट विल बी लाइक एन इनपुट फॉर मी, जिसको मैं अब आगे डेंस लेयर में दूंगा. वो न्यूरल नेटवर्क, अब यहां से न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट होगा. तो सो फार वी आर जस्ट एक्सट्रैक्टिंग द फीचर्स फ्रॉम द इमेजेस, ये ऐसा कर करके कन्वोल्यूशन पूलिंग लगा लगा के. तो पूलिंग, लेट मी टेल यू, पूलिंग जो है दैट इज टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज फ्रॉम द इमेजेस. और डिपेंड कर रहा है आप कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल मैक्स पुलिंग, दैट मीन्स यू आर पिकिंग अप द मैक्सिमम मैक्स वैल्यूज. ओके, तो जस्ट द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड टू मी कि सर आपने ये जो रेड का ऑपरेशन करा, फिर ग्रीन का करा, फिर ब्लू का करा, फिर यू डिड परफॉर्म द एडिशन, तो क्या हमने कुछ लूज करा? नहीं, बिल्कुल ही लूज नहीं करा. इनफैक्ट हमने तो ऐड करा है, लूज नहीं करा. The information of these three are being added and they are present in the resultant matrix. और मैं यहां से पूलिंग करके, ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू परफॉर्म मैक्स पूलिंग, तो ये आपकी, जैसे मान के चलिए आफ्टर कन्वोल्यूशन, दिस इज द रिजल्ट यू आर गेटिंग. ओके, तो ये क्या है, ये दिस इज 4x4. यदि आप मैक्स पूलिंग लगाते हो और पूलिंग की जो आपकी है मैट्रिक्स, दैट इज 2x2 की है. If the pooling matrix is 2x2, तो it will operate here, और वो यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू उसको पिकअप कर लेगी. व्हाट इज द मैक्स वैल्यू हियर? 7. ओके, कम ऑन, 7. देन इट विल वर्क हियर. ओके, व्हाट इज द मैक्स वैल्यू? 7. कम ऑन हियर. देन इट विल ऑपरेट हियर. व्हाट इज द मैक्स वैल्यू? 6.
Okay, then here, what is the max value? 8. Is here you are giving the striding 2, यानी वो पहले यहाँ पर थी, फिर वो 2 से जंप कर गई, इधर आ गई, फिर वो 2 से नीचे भी आ गई, 2 की स्ट्राइडिंग कर दिया आपने। स्ट्राइडिंग इज 2, 2x2 की ही पूलिंग मैट्रिक्स थी, फिल्टर वो भी 2x2 की ही थी। ओके, सो एवरीथिंग इज क्लियर। Okay, there is nothing hidden, everything is clear. All right, now you can see that the matrix is further reduced, and only those values we extracted which are maximum values. That means most of the information about the color channels, about the intensity, are present here. Okay, so the question which is asked to me, sir हमने कुछ लूज करा? कुछ नहीं करा। इनफैक्ट हमने तो ऐड करके जो है उनकी इंफॉर्मेशन को और स्टोर कर लिया, और अभी यहाँ पर ये पूलिंग लगाने के बाद जो मैक्स वैल्यूज थी उनको उठा लिया। ओके, इट डिपेंड्स वेदर यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द मैक्स फीचर, देयर इज मीन ऑपरेशन आल्सो, देयर इज एवरेज ऑपरेशन आल्सो। ओके, you can have min pooling also. So in case of min pooling 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड 2 आ जाएगा, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। If you want to pool, या if you want to take only the features which are having minimum values, so you can take min pooling. इफ यू वांट टू टेक, नहीं मुझे मिन मैक्स नहीं, मुझे एवरेज चाहिए, तो आप एवरेज भी कर सकते हो, एवरेज पूलिंग भी होती है। ठीक है, एवरेज पूलिंग। सो देयर ना एवरेज विल बी कैलकुलेटेड 7 + 2 + 4 + 5/4, देन 5 + 2 + 4 + 7/4, 3 + 3 + 6 + 4/4, 4 + 2 + 8 + 6/4, वॉट एवर भी द वैल्यूज जो यहाँ पर आ जाएगी ना, वो एवरेज पूलिंग वाली होगी। ये करते हैं अपन। ऑलराइट, तो ये पूलिंग हो गई। दिस इज व्हाट हैपेंस। ठीक है, अब जैसे ये है आपका, ठीक है, ये थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। डिजिट रिकॉग्नाइजेशन। ओके, सो दिस इज 8, एक इमेज है, 8 है नंबर इसमें। इसको हमने कन्वोल्यूशन 1 में दिया, कन्वोल्यूशन लेयर 1 में दिया। यू कैन सी ये क्या हुआ, अलग अलग फिल्टर से ये मल्टीप्लाई होकर ऐसे हो गई है। देन इसको पूलिंग लेयर में दिया। अब देखो इसकी साइज और छोटा हो गया, यू कैन सी द साइज इज फर्दर रिड्यूस, डायमेंशन कम कर दिए ना। और अब इसको अगले कन्वोल्यूशन में दिया, फर्दर फीचर्स आर एक्सट्रैक्टेड, अब देखो और छोटा हो गया। देन फिर पूलिंग में दिया, फर्दर मोर स्मॉल, देन एफ सी लेयर, यानी कि फुल्ली कनेक्टेड लेयर, यानी कि यहाँ पर फ्लैट कर दिया, उसको 1D में कन्वर्ट कर दिया, एंड देन अगेन डेंस लेयर दे दिया, और ये आउटपुट। ओके, इस तरीके से काम कर रहा है वो। ओके, फाइन। तो मेरे पास और कोई डायग्राम है, ये रहा कुछ ऐसा। अगेन लेट मी शो यू द डायग्राम। All right, so for example this is the image 39 cross 39 cross 3, 3 is the color channel, यानी आपकी जो इमेज है 3 का मतलब होता है RGB, और 39 ये विड्थ और हाइट है, विड्थ एंड द हाइट। ठीक है, सो ये रेजोल्यूशन की इमेज है और ये RGB कलर चैनल है। ठीक है, फाइन। ये आपने दिया है कन्वोल्यूशन लेयर को, फिर कन्वोल्यूशन को, एंड एज मेनी एज कन्वोल्यूशन यू आर एडिंग, तो वो होते चला जाएगा। फाइन, दैट विल कंटिन्यू। तो रिजल्टेंट ये क्या आएगा, ये कहाँ से आया, 37 × 10, ये जो मिला है आपको। फाइन, वो जस्ट आई टोल्ड यू ना, वन फॉर्मूला अबाउ, यू सीन दैट व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मैट्रिक्स आफ्टर द कर्नल ऑपरेशन। वो फॉर्मूला लगाना है आपको, रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पर 10 फिल्टर लगाए हैं ना, 10 कर्नल हैं, यहाँ पर 20 फिल्टर है, 20 कर्नल हैं, यहाँ पर 40 फिल्टर्स लगाए हैं। तो इस तरीके से, और देखो इमेज का साइज छोटे होते चला जा रहा है। 39 से 37 हो गई, 37 से 17 हो गई, 17 से 7 × 7 हो गई, ये हो गया 40। ये क्या है आपका 40 नंबर ऑफ फिल्टर्स हैं। तो इतने मेरे को फीचर्स मिल जाएंगे, 7 × 7 इतने मुझे मिल जाएंगे। बाद में मैं इसको फ्लैट कर दूंगा, फ्लैटन यानी क्या होगा, 7 × 7 × 40, दैट विल बी लाइक 1960। तो ये पूरी एक 1D बन जाएगी, 1 डायमेंशन। अब मैं इसको बाद में न्यूरल नेटवर्क में दे दूंगा फॉर क्लासिफिकेशन और वॉट एवर आई नीड टू डू, मैं वहां पर दूंगा।
All right. This is how it works. Fine. Yes, ask the question. Sir, that filter number, sir, it Hmm. is predefined or you can alter that. At the last, you got 740, हाँ हाँ. and initially we started Sir, with that 5. is according to the this diagram. You can change from your side, na sir. Filter numbers are the kernels. I It's up to mean, you. we do have the liberty to alter that, sir. I can take any number. Any kernel number of kernels or filters you can take, na. That's Okay, upon sir. you. Fine, All sir. right. There is So no restriction, sir. no, it's not restriction, sir. But you have to take care that again. What is the size of the image? Okay, what is the size of the image? And this is how it is going to be reduced. Okay, this is how it is getting reduced. So just like you have to take care कि वो diminish ना हो जाए, खत्म ना हो जाए. बस उसका ध्यान रखना है आपको. So 39 से 37, फिर 17 से 77 हो गई वो. ऑल राइट. सो यहाँ क्या है, हियर पैडिंग जीरो है और ये 3x3 की मैट्रिक्स है. 10 ऐसी 3x3 की मैट्रिक्स ली. सो आफ्टर दैट यू गॉट द रिजल्ट इज 37 37 10. देन ये 5x5 की ली है, स्ट्रेडिंग 2 से करा, पैडिंग जीरो करी. सो यू गॉट 17 17 20. देन ये है 5x5 की. सो अगेन सर द थिंग इज व्हाट इज द साइज ऑफ द फिल्टर यू आर टेकिंग एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ फिल्टर्स यू आर टेकिंग, ये उस पर डिपेंड करेगा. ऑल राइट. और आप ये निकाल सकते हो. यू कैन फाइंड दैट वो कितना आ रहा है, उनकी वैल्यूज कितनी आ रही है. ओके, सो हियर वेरी स्मॉल नेटवर्क इज क्रिएटेड, बट यू हैव टू स्ट्रेस मोर टू अंडरस्टैंड. अच्छा, इतना टफ भी नहीं है, सब कुछ दे रखा है यहाँ पर, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना. ओके, इस मैथ्स पे. ऑल राइट. ये अगेन जैसे कि इनपुट है जेब्रा. सो वी आर गोइंग टू अप्लाई कर्नल, जैसे करा ना कर्नल. तो कन्वोल्यूशन रेलू, रेलू इज योर एक्टिवेशन फंक्शन. वी डू अप्लाई एक्टिवेशन to convert your convolution results into non-linear. Okay, activation function I already told. This is the rectified linear unit. Deep learning में पढ़ रखा है अपन ने. ठीक है, तो we do apply the ReLU just to have the non-linearity in the data. ठीक है. सो ये कन्वोल्यूशन लगाया. ठीक है, जो रिजल्ट आया अगेन कन्वोल्यूशन रेलू पूलिंग के साथ साथ कन्वोल्यूशन पूलिंग, कन्वोल्यूशन पूलिंग, कन्वोल्यूशन पूलिंग. फाइनली फ्लैट कर दिया उसको. यानी और फर्दर नहीं लगा सकते. 7x7 के बाद तो मामला खत्म है. ठीक है, इट्स ओवर आफ्टर 7x7. यू नेवर मीन टू कन्वर्ट दैट इनटू 1x1 इनटू 80. ये नहीं करना अपन को. ठीक है, 7x7 क्रॉस 40 फाइन. ठीक है, बहुत रिड्यूस हो गई है. किसी भी इमेज को आपने 7x7, वो 39 से 7x7 तक कम कर दिया, और क्या करोगे अब. खत्म थोड़ी ना करना उसको, 1x1 में लेकर थोड़ी ना आना. यानी ओनली 1 रो एंड 1 कॉलम फीचर विल बी प्रेजेंट 1x1 में, तो ये नहीं करना. ओके फाइन. सो इतना हो गया, बस बात खत्म. ओके, एंड देन आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द फीचर, दिस इज अ न्यूरल नेटवर्क वेयर वी आर क्लासीफाइंग. तो ये कह रहा है इतनी फुल्ली कनेक्टेड है, ये फुल्ली कनेक्टेड लेयर है, ये न्यूरल नेटवर्क है, ये फीचर एक्सट्रैक्शन है, ये CNN है. एंड ये प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हो सकता है यहाँ पर शॉर्ट मैस एक्टिवेशन फंक्शन लगाया है फॉर मल्टी क्लासिफिकेशन. दैट ओके, 20% it is looking like horse, 70% it is looking like zebra, 10% it is looking like dog. ऐसा बता रहा है. ऑल राइट. तो ये काम करते हैं. अगेन वो बना के दे दिया उसने डायग्राम. ओके, सो लेट मी शो यू मोर. ये कोड है उसका, इस तरीके से आप करते हो. Okay, that means convolution layers, number of filter, kernel size, activation ReLU. Okay, this is how you add a convolution layer. And the operation, what convolution do, I already told you. क्या करेगा वो, इमेज को क्या करने वाला है. ठीक है, आपको बता दिया मैंने. और ये बार बार आप whenever you open the convolution ना, you will get the same thing. ये स्टफ मिलने वाला है आपको, ये डायग्राम मिलेगा कि भाई ये रही इनपुट की, ये रही कर्नल की, मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आ रहा. ओके फाइन. हाँ, लेकिन जितने नंबर ऑफ कर्नल होंगे उतने ही आएंगे इनटू करना. उसको उसको कहते हैं अपन डेप्थ. ठीक है, जितने कर्नल बढ़ेंगे उतनी डेप्थ बढ़ेगी. फाइन.
तो ये मैकेनिज्म होगा CNN के अंदर। ओके, ये एक्टिवेशन पूलिंग बता दिया मैंने। ओके, ये देखिए मैक्स पूलिंग, एवरेज पूलिंग, यू नो अबाउट दिस थिंग। ओके, जस्ट बता दिया मैंने। ऑलराइट, सो दिस इज फुल्ली कनेक्टेड, वो न्यूरल नेटवर्क है ये। After you extracted the feature, give it to the neural network for the classification, whatever be the task you want to do. In general classification, image classification में ये होता है। ओके, फाइन, ये करा। ओके, तो ठीक है, ये सारी बातें हुई हैं। ओके, अब ठीक है, फ्यू फ्यू मोर थिंग्स आई वांट टू से कि आप अभी कर रहे थे डाउन सैम्पलिंग। दैट मीन्स आपने इमेज को रिड्यूस करा, इमेज साइज रिड्यूस्ड बाय कन्वोल्यूशन। ठीक है, इसको अपन इंक्रीज भी कर सकते हैं। दैट इज अ रिवर्स प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज डी कन्वोल्यूशन, जिसको अपन अप सैम्पलिंग कहते हैं। ओके, सो बाय कन्वोल्यूशन वी डू परफॉर्म डाउन सैम्पलिंग, दैट मीन्स रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ your size of the image, just extracting the relevant features from the image, that is down sampling. And up sampling is to increase the number of the that is the size of the image, उसको increase कर दो आप। ठीक है, ये अप सैम्पलिंग में होगा, दैट इज डी कन्वोल्यूशन। ठीक है, और यही बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, अप सैम्पलिंग लेयर होती है, जैसे डाउन सैम्पलिंग लेयर है ना, कन्वोल्यूशन डाउन सैम्पलिंग है, वैसे अप सैम्पलिंग लेयर भी होगी। ओके, वो ये काम करेगी अप सैम्पलिंग का। इट इज अ टेक्निक इन द डीप लर्निंग टू इंक्रीज द रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द फीचर मैप। ओके, तो फीचर मैप वही है, इमेज जब इससे मल्टीप्लाई रिजल्ट आ रहा है ना जो आउटपुट, उसको फीचर मैप ही बोलते हैं। तो यू कैन अप सैम्पल इट। अप सैम्पलिंग के लिए उन्होंने बोला कि कई टेक्निक्स हैं, जैसे नियरेस्ट नेबर लगा सकते हैं, नियरेस्ट नेबर अप सैम्पलिंग। ठीक है, दैट मीन्स यू कैन परफॉर्म द डुप्लीकेट्स या रेप्लीकेट कर दो। और ये बहुत ही आसान टेक्निक है। देखो, जैसे आपके पास यू आर हैविंग एन इनपुट ऑफ 1 2 3 4 एंड यू नीड टू अप सैम्पल दिस इमेज। तो सबसे इजी तरीका है, आपको यदि 2x2 को 4x4 में कन्वर्ट करना है ना, तो उसके रेप्लीकेट बना दो, 1 1 1 1 2 2 2 2। देखो, सबके रेप्लीकेट बना दो, 3 3 3 3 4 4 4 4। ये हो गया अप सैम्पल। ये नियरेस्ट नेबर टेक्निक है, सबसे इजी है ये। ठीक है, फाइन। और फिर उसके बाद ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन भी होता है, जिसको मैंने डी कन्वोल्यूशन बोल रहा था। ये थोड़ा सा ठीक है, क्या करेगा ये, द ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन ऑफन रिफर्ड एज डी कन्वोल्यूशन। ऊपर मैंने यही बोला था, ट्रांसफर। ये भी अपसैम्पलिंग करता है, और यही यूज करते हैं अपन। We do use this transpose convolution or deconvolution only for the upsampling. It involves convolution operation with learnable parameters to increase the spatial dimension. ये भी convolution operation perform करता है upsampling करने के लिए। तो downsampling के लिए भी हमने convolution लगाया था, upsampling के लिए भी convolution लगाएंगे, लेकिन वो ट्रांसपोज्ड है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है वो। दैट मीन्स 3x3 ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन, यानी ये 2x2 की मैट्रिक्स है, मैंने 3x3 का एक कर्नल ले लिया। अब ये 2x2 की जो है वो तो यहाँ पर रही, बाकी ये जो है ये पोर्शन, इसकी अपन पैडिंग कर देंगे, इसकी पैडिंग कर देंगे यहाँ पे बॉर्डर पे। ठीक है, ये फिर स्ट्राइड करी, यहाँ पर आया। ओके, फिर ये नीचे आएगी। ओके, तो यहाँ पर जितने भी बॉर्डर है ना, इनकी पैडिंग कर दो। एंड रेस्ट मल्टीप्लीकेशन जो यहाँ पर हो रहा था वो तो हो गई, द मल्टीप्लीकेशन विल बी देयर। ऑलराइट, ये होगा। सो दिस इज ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन। ओके, करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज आप बना रहे हो जैन। देखेंगे, मेरे पास कोड भी है, कोड एक्सप्लेन करना बचा है मेरा। तो यू आर मेकिंग जैन, एंड जैन में आपको क्या करना है, जनरेटर जो है उसको नॉइज दे रहे हो कंटिन्यूस, एक डेटा है रैंडम डेटा वो दे रहे हो, और वो जाएगा डीप लर्निंग के अंदर, और वो आपको कुछ बना के दे देगा। और यहाँ पर आप इमेजेस दोगे,
ये भी एक इमेज बना के देगा, ठीक है, ये इमेज बना के देगा, और डिस्क्रिमिनेटर को रियल इमेज दोगे, ये फेक इमेज बना के देगा, फिर क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है, और फिर फीडबैक जाएगा, बोला जाएगा गलती कर दी तूने, इसके पास भी जाएगा, डिस्क्रिमिनेटर के पास। And at the initial stages, the discriminator will be told that okay, fine, you did the good job. Discriminator at initial stages, discriminator can easily classify, वो कर लेगा. But as the training grows, our expectation is generator should be stronger. Okay, because now it will learn that how to make a real image. Because here with the feedback, it's getting an idea, because you are also putting real image here. Okay, so from the feedback, generator is getting an idea that how the real image looks like, because it is working on the rough data, but now it's getting some idea slowly. Okay, and it's getting stronger. So for about thousands of iterations, the generator will become strong. Later on we can use generator to make any images. That's what we are going to do. Okay, I am having the Kaggle code of minds. Okay, where I will be taking fashion data set, or like the one which you have seen, अभी आपने देखा था ना वो डिजिट वाला, ठीक है, तो हम ऐसा कुछ डेटा लेंगे, फाइन, एंड विल मेक एन जैन आर्किटेक्चर, वो बना लेंगे, और मैं आपको इमेज जनरेट करके बताऊंगा, ठीक है, ये देखिए, ये इमेज जनरेट हुई है, ये फेक इमेज है, दिस इज अ फेक इमेज, और ये देखिए, धीरे धीरे करके हुए मेरा वो सीखते चले जा रहा है। अब आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि सर ये रियल जैसी बनाना शुरू कर दी इसने। फॉर एग्जांपल ये 1 दिख रहा होगा, ये 9 दिख रहा होगा, ये भी कुछ 9 दिख रहा होगा। ओके, ये सब दीज आर द इमेजेस व्हिच आर क्रिएटेड बाय एआई। रियल नहीं है ये, लेकिन रियल की तरह दिख रही हैं। दे आर फेक, बट मैंने क्या करा, मॉडल जो है ना वो इट्स लाइक दैट वी ट्रेन द मॉडल, और ओनली 5 इटरेशंस तक ही ट्रेन करा। अभी और ज्यादा ट्रेन करता तो और स्ट्रांग हो जाता वो। सी द जनरेटर लॉस इज 1.4, ये डिस्क्रिमिनेटर लॉस है 0.94, मतलब डिस्क्रिमिनेटर अभी भी कर पा रहा है डिस्क्रिमिनेट अच्छे से। जनरेटर का लॉस 1.3, डिस्क्रिमिनेटर 1.16, तो लॉसेस हैं। अब मेरे को आपको लॉसेस के बारे में भी समझाना है अभी, तो ये कैसे कैलकुलेट होंगे, इनकी भी मैथ्स है। ओके, तो टुडे आई डिड एक्सप्लेन यू अबाउट द कन्वोल्यूशन। वैसे कन्वोल्यूशन अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक है वो, तो भी ये ओवरव्यू दे के मैंने आपको संभाला है, ठीक है। सो टुमारो अगेन ना आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द लॉसेस इन द जैन मॉडल्स, ठीक है, लॉस, ये लॉस फंक्शन क्या होते हैं, एंड देन वी हैव टू स्पेंड टाइम इन अवर कोडिंग, ठीक है, ये कोड पर अपन को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि हाउ द जैन वर्क्स। सो आई लुक आउट फॉर दैट मीन्स मैं कम से कम 2 कोड तो आपको बता पाऊँ, 2 डेटा सेट पर आपको काम करके बताऊँ। ओके, दैट दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक एन आर्किटेक्चर। ये देखिए, ये आर्किटेक्चर बना है एक, ये जनरेटर का आर्किटेक्चर है। ओके, ये जनरेटर का है, और ये डिस्क्रिमिनेटर का, वो दोनों डीप लर्निंग है। दिस इज ऑल्सो डीप लर्निंग है, दैट इज ऑल्सो डीप लर्निंग, दोनों ही डीप लर्निंग है आर्किटेक्चर से। ओके, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। जब उनकी ट्रेनिंग होगी तो क्या कर रहे हैं मैं बताऊंगा, समझाना पड़ेगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। ओके, विल बी इन्वेस्टिंग टाइम ओवर इट, मतलब देखते हैं क्या है। ओके, लेट मी, so I request everyone to go through the concepts of